Hello everyone. Today we will continue further the topic time value of money and we will be learning about computing future value of multiple uneven flows. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy where learning and education is imparted in an easy way. If you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video. So let's start discussing the topic computing future value of multiple uneven cash flow. In the earlier videos on time value of money, we discussed computing future value of single flow, doubling period, future value of multiple compounding period, effective rate of interest. So the students who have not seen the earlier videos, please watch them completely to understand the concept further. And here in this video, we will discuss how we can compute the future value of multiple uneven cash flows. First of all, we should understand what are the multiple uneven cash flows. Multiple uneven cash flows means the payment that are not all equal and that are generally made or received at equal intervals. It means वह कैश फ्लोज जो मल्टीपल कैश फ्लोज हैं और वह सभी इक्वल नहीं है. जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि हमने एक लमसम अमाउंट एक ही टाइम पीरियड में फर्स्ट टाइम पीरियड में डिपॉजिट कराया और उसकी फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर रहे हैं. बट यहाँ पर कैश फ्लोज रेगुलर इंटरवल्स पर इक्वल इंटरवल्स पर डिपॉजिट कराए जा रहे हैं कैश की जो फ्लोज हैं, लेकिन वह अनइवन कैश फ्लोज हैं. मींस इट्स नॉट नेसेसरी कि वह सभी कैश फ्लोज इक्वल होंगे. वह इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. उनके अमाउंट एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है और इक्वल इंटरवल्स पे अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर होल टाइम पीरियड में वह कैश फ्लोज किए जाते हैं. What is the impact of compounding? Growth in value is the result of additional payments as well as interest. अब जो वैल्यू में ग्रोथ होती है, वैल्यू इंक्रीज होती है, उसका रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स पर एडिशनल पेमेंट्स की जा रही हैं, कैश फ्लोज रेगुलरली किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो एडिशनल पेमेंट्स की जाती हैं उस पर इंटरेस्ट भी जनरेट होता है. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग. लेट्स अंडरस्टैंड इट further. Compounding future value of multiple uneven flows using the timeline. So let's put the problem on the timeline to understand the concept. This is the timeline showing the different time periods starting from 0 to 5. Means it shows the 5 time periods. And the rate of interest is 10%. And this is the series of payments, means the cash flows. These are the unequal cash flows. Like the cash flow 1000, this is the cash outflow of 1000 at the beginning of time period 1. यहाँ 0 time period में 1000 rupees है cash flow, means it is the beginning of time period 1. Then cash flow of 2000 at the beginning of time period 2 or at the end of time period 1. Then cash flow of 3000 at the end of time period 1 and the beginning of time period 2. And cash flow of 2000 again, that is at the end of time period 2. Then cash flow of 1500 at the end of time period 3. So these are the uneven cash flows. Now we will have to calculate the future values of these multiple uneven cash flows. How we will calculate it? These are the compounding periods. Compounding periods हम calculate करेंगे अब यहाँ पर. This is the compounding period of 1000. जो 1000 हमने फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में यहाँ पर डिपॉजिट कर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसका कंपाउंडिंग पीरियड, बिकॉज उसकी कंपाउंडिंग कब से स्टार्ट होगी? फर्स्ट ईयर के एंड पर. तो यहाँ पर कंपाउंडिंग पीरियड उसका क्या होगा? 5 minus 4. दिस एरो shows the time period of compounding of the different cash flows. बिकॉज यहाँ पर हमने ये 0 पीरियड में 1000 रुपीज जमा कराए, तो ये बैंक में कितने समय तक रहेंगे? 5 years तक रहेंगे. अब लेकिन इसकी जो कंपाउंडिंग है वह कब से स्टार्ट होगी? जब एट द एंड ऑफ ईयर वन का एंड होगा, यहाँ से इसकी कंपाउंडिंग. तो इसकी कंपाउंडिंग का टाइम पीरियड
this time period, this arrow shows the period of compounding 1, 2, 3 and 4. तो यहाँ पर टोटल टाइम पीरियड 5 है, लेकिन कंपाउंडिंग टाइम पीरियड इसका क्या होगा 4, बिकॉज इस टाइम पीरियड में इसकी कंपाउंडिंग होगी एट द एंड 1 इसकी कंपाउंडिंग स्टार्ट होगी. So what will be the period of compounding? 5 minus 1 is equal to 4. इसी तरह से हम डिफरेंट कैश फ्लोज का कंपाउंडिंग पीरियड कैलकुलेट करेंगे. अब जो हमने यहाँ पर 2000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं एट द एंड ऑफ ईयर 1, इसका कंपाउंडिंग पीरियड क्या होगा? दैट विल बी, बिकॉज यहाँ पर इसकी कंपाउंडिंग कब स्टार्ट होगी? जब इस ईयर का एंड हो जाएगा, मींस एट द एंड ऑफ दिस ईयर. तो यहाँ पर इसकी कंपाउंडिंग टाइम पीरियड क्या होगी? 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पर 5 minus 2 is equal to 3. ये इसका पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग होगा. इसी तरह से अब ये जो 3000 हमने यहाँ पर डिपॉजिट कराए थे 3000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, उसका कंपाउंडिंग पीरियड क्या होगा? बिकॉज इसको हमने कितने टाइम तक कंपाउंड होगा, ये इसकी कंपाउंडिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी. डिपॉजिट कराया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, लेकिन इसकी कंपाउंडिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी. तो यहाँ पर इसका कंपाउंडिंग पीरियड क्या होगा? 5 minus 3 is equal to 2. नेक्स्ट इज ₹2000. इसका कंपाउंडिंग पीरियड क्या होगा? 5 minus 4 is equal to 1. बिकॉज ये जो यहाँ पर डिपॉजिट कराई गई है अमाउंट, इसकी कंपाउंडिंग कब से स्टार्ट होगी? यहाँ पर आकर स्टार्ट होगी इस टाइम पीरियड में एट द एंड ऑफ दिस ईयर. यहाँ पर इसकी एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर यहाँ पर इसकी कंपाउंडिंग स्टार्ट होगी. तो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड होगा, कंपाउंडिंग पीरियड ये वाला होगा 4 to 5th ईयर, मीन्स फोर्थ ईयर के एंड में और 5th ईयर के बिगिनिंग तक, यहाँ तक इसकी जो कंपाउंडिंग होगी. तो यहाँ पर 5 minus 4. अब इसी तरह से जो 1500 एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर हमने डिपॉजिट कराए हैं, उसके कंपाउंडिंग, बिकॉज यहाँ पर इसकी कंपाउंडिंग होती कब? फोर्थ ईयर के एंड में, और यहाँ पे हमारा 5th ईयर. लेकिन यहाँ पर कंपाउंडिंग होगी ही नहीं इसकी, बिकॉज यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड एंड हो गया. तो यहाँ पर कंपाउंडिंग पीरियड क्या होगा? 5 minus 5 is equal to 0. The future values of multiple uneven cash flows. Here the formula for calculating and the future value is FVN is equal to PV into 1 plus I raised to power n, as we have already discussed in our earlier videos. So we will calculate the future value of first cash flow, that is 1000. अब 1000 जो हमने ईयर फर्स्ट के बिगिनिंग में डिपॉजिट कराए थे, उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? 1000 इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू. तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया? इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट की 1000 इंटू 1 प्लस 0.1, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू पावर 4 जो हमारा कंपाउंडिंग पीरियड यहाँ पर क्या है? 1000 का 4 है. तो इस ये वैल्यूज हमने पुट की जब इस फॉर्मूला में, द वैल्यू इज 1460. इस तरह से हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की. द सेम वे वी विल कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अदर मल्टीपल कैश फ्लोज ऑल्सो. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2000 की भी सेम इसी तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. एंड यहाँ पर देखिए कंपाउंडिंग पीरियड क्या है? 3. एन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, एन है हमारा 3, वैल्यू आई 2662. द सेम वे थर्ड ईयर की थर्ड कैश फ्लो की कैलकुलेट की 3000 इंटू 1.1 रेज टू पावर 2, बिकॉज हियर द कंपाउंडिंग पीरियड इज 2. एंड देन 2000 जो हमारा यहाँ पर डिपॉजिट हुआ, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है? 2000 इंटू 1.1 रेज टू पावर 1, बिकॉज यहाँ पर कंपाउंडिंग पीरियड 1 है. एंड इन द सेम वे ये जो 1500 है, इसकी वैल्यू 1500 इंटू 1.1 रेज टू पावर 0, बिकॉज यहाँ पर कंपाउंडिंग पीरियड 0 था. तो यहाँ पर 1.1 रेज टू पावर 0 वैल्यू होगी 1. 1500 इंटू 1 इज इक्वल टू 1500. तो ये हमारी सभी कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं. अब इनका एग्रीगेट करेंगे, देन we will get the future value at the end of 5 years for all uneven cash flows. The value is 11,456. So this is how we will calculate the future value using the
timeline approach. In the next slide, we will understand how we can compute the future values using the compounding factor table. So here we will understand how we can use the compound factor table to calculate the future value of multiple uneven flows. This is the timeline showing the different values. We have put the values on the timeline, taking the previous example. We are taking the same example here. So how we will calculate the future value here? We will put these values in a table. End of year, they are different columns. End of year, different years हैं because 5 time periods हैं. Amount of payment in rupees, present value क्या होगी, number of years of compounding जो हमने previous slide में discuss करना सीखा कि कैसे हम compounding time period calculate करते हैं. Future value of interest factor, we will calculate the future value of interest factor with the help of table and future value of the cash flow. So first at the end of year 1, ईयर 1 के एंड में हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो हमने 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर डिपॉजिट कराए थे, उस वह हमारी अमाउंट ऑफ पेमेंट है. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंपाउंडिंग कितने थे इसके, 4. हमने सीखा है प्रीवियस स्लाइड में कि कैसे कैलकुलेट किया गया. 5 - 1 इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर क्या है, 1.464. ये हमने कैसे कैलकुलेट की है, देखिए, लाइक यू कैन सी इन दिस टेबल, दिस इज अ कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल. यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड था 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 4th ईयर और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1.464. तो यहाँ से हमने यह वैल्यू यहाँ पर लिखी है. नेक्स्ट है, अब हमने फ्यूचर वैल्यू इसकी कैलकुलेट की. फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कैसे की है, ई इज इक्वल टू बी इंटू डी. बी इज 1000, कैश फ्लो इज 1000 इंटू डी. डी है जो हमने यहाँ पर कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल से वैल्यू डिराइव की है. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, द वैल्यू विल बी 1000. इसी तरह से हम सभी कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. सो एट द एंड ऑफ ईयर सेकेंड, द अमाउंट इज 2000 की यहाँ पर कंपाउंडिंग है, तो कंपाउंडिंग टाइम पीरियड कितना था, 5 - 2 इज इक्वल टू 3. And future value of interest factor in the same way we will see from the table, compounding factor table से वैल्यू डिराइव की जाएगी और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, the value will be this. In the same way at the end of third year, ये जो थर्ड ईयर की एंड में 3000 जो कैश फ्लोज है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 2000 रुपीज जो कैश फ्लोज है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू. देन एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर 1500 जो हमने अमाउंट डिपॉजिट कराई है उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी. यहाँ पर देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से भी इसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दैट विल बी 1500. यहाँ पर इनका एग्रीगेट किया जाएगा, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years. So this is how we will calculate the future values using the compounding factor table. In the next slide, we will discuss the direct formula approach to calculate the future values. So what is the direct formula approach? Here we are given a single formula for calculating the future values of multiple uneven cash flows. Formula is FVN, N is the time period, is equal to R1 into 1 plus I raised to power n minus 1 plus R2 into 1 plus I raised to minus 2 plus and so on plus R n minus 1 into 1 plus I plus Rn. So let's understand what are these terms. FVN is future value of initial cash outflow at period N. R1 is payment after period 1, R2 payment after period 2, Rn payment after period N. Because यहाँ पे multiple cash flows हैं तो different time periods के end में हमारी payments की गई हैं. I is rate of interest per annum. If it is 5%, then it will be 0.05 in decimal. So now we will continue the same example. And we have put the values on the timeline. So what will be the R1 here? R1 here is 1000, R2 will be 2000 जो ईयर फर्स्ट के एंड में हमने अमाउंट डिपॉजिट कराई, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में. देन R3 will be 3000, R4 will be 2000 and R5 will be 1500 जो फोर्थ ईयर के एंड में अमाउंट डिपॉजिट कराई. तो इस तरह से हमारे
डिफरेंट कैश फ्लोज हैं जिसको हमने R1 to R5 नेम दिया है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर Rn यहाँ पे, बिकॉज यहाँ जो भी आपका लास्ट टाइम पीरियड है 5 ईयर है 6 ईयर है, दैट डिपेंड्स अपॉन उतने हमारे यहाँ पर कैश फ्लोज होंगे, आर्स होंगे. नेक्स्ट, हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हियर, FVN मीन्स 5. तो इस तरह से हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, R1 इंटू 1 प्लस 0.1 हमारे जो इंटरेस्ट फैक्टर है, ये सभी वैल्यूज इस तरह से हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, देन वी विल गेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल अनइवन कैश फ्लोज here. At the end, we have put the values of R1, 2, 3, 4 and 5 also, and the values, final values are 1464, 2662, 3630, 2200 plus 1500 is equal to 11,456. This is the future value of multiple uneven cash flows using this direct formula approach. So we understood three methods of computing future value of multiple uneven flows here, using timeline approach, using compounding factor table, and using direct formula approach. So I hope you must have understood this content very well. In the next video, we will understand computing future value of annuity. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video.